अस्सलाम हेलो व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिवली अ स्मॉल टॉपिक और इसका बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो लेट अस स्टार्ट। Okay, first thing I would like you all guys to understand that whenever you're attempting this very question, you have to think about the traditional definitions of international law and the modern definitions of international law. ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आपको याद होगा कि हम सिर्फ ये बात करते थे कि states are the only ones who are bound by international law by some treaty and customary rules. So there we are just talking about states. यानी वहाँ पे states की बात है कि states ही सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वही ट्रीटीज करते हैं और वही कस्टमरी रूल्स के थ्रू बाइंडिंग है उन पे। जस्ट लाइक इफ़ यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ओपनहाइम और इवन ऑफ कैल्सन के जिन्होंने ये बात की। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि जो स्टार की डेफिनेशन थी उसमें उसने कहा जी कि ना सिर्फ स्टेट्स हैं बट देर आर सम इंडिविजुअल्स, नॉन स्टेट एंटिटीज, एंटरप्राइजेज, कंपनीज, organizations, they all are somehow bound by international law. International law is directly applicable on them. Hence उसके ख्याल में यानी कि स्टार्क के ख्याल में all of these become the subject of international law. So first thing that you should understand is the traditional definition and the modern definition, and then we come to this point that who is actually a subject of international law. Subject वो होता है जो राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, जो अपनी लाइबिलिटीज को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये आप यानी कि एक वो हर वो एंटिटी जो कुछ हकूक रखती है और अपने फ़राइज़ सरंजाम दे सकती है। अब स्टार कहता है an incumbent of rights and duties under international law. An incumbent means that person or entity who has some rights and duties under international law. The one who can initiate a claim before an international tribunal. International tribunal कोई भी हो सकता है, ILO है, ICJ है, यानी हर वो person or bunch of persons who can institute a claim before international tribunal. The possessor of interest under international law. Right is an interest. Right is a protected interest. It's a very basic definition of a right. So if some entity has a right, it means that his interest is protected by international law. International law ने कुछ उसको कोई इंटरेस्ट दिया है जिसकी वजह से वो राइट उसका क्रिएट हुआ है। यानी कि जो कहता है कि मैं सब्जेक्ट हूँ इंटरनेशनल लॉ का, उसके पास इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ राइट्स होने चाहिए। Other one is the capacity to conclude treaties with international organizations and states. So basically what he is trying to say is the subject of international law is an entity which is capable of possessing rights and duties under international law and has the capacity to maintain those rights. हैज़ दी कैपेसिटी, यानी कि ना सिर्फ वो राइट्स को पोजेस करता है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, बल्कि वो उसके अंदर ये कैपेसिटी भी है कि वो इन राइट्स को एग्जीक्यूट करवा सकता है थ्रू इंटरनेशनल क्लेम बिफोर सम इंटरनेशनल फोरम। तो ये है बेसिक डेफिनेशन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है, नेक्स्ट है अब द स्टेट्स एज द वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। सो ट्रेडिशनल डेफिनेशन अगेन अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, he said that states are the only subjects, because states are the ones who are concluding treaties, states are the ones who are being bound by customary international law, and we say international law as law of nations too. So sometimes we use the word international law, sometimes we use the word law of nations. It means that international law has only one subject, and that is state. But again, there are some discrepancies here that we are going to talk about. My second point is that this theory fails to explain the cases of pirates and prisoners of war. We have already said once that pirates
कम अंडर द यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, जहाँ हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो पायरेट उसको पकड़ता है पायरेट को, बिकॉज दे हैव बिन टर्म्ड एज अ पब्लिक एनिमी, ये इंसानियत के दुश्मन करार दिया गया है पायरेट्स को। तो जो मुल्क उनको पकड़ता है उसके पास इख्तियार हासिल है कि वो उसको सजा दे सके इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द पायरेट। इन द सेम वे व्हेन जिनेवा कन्वेंशन जो प्रोटेक्शन ऑन वॉर पे है कि वॉर जब भी ब्रेक आउट होती है तो उसमें जब प्रिजनर्स आर व्हेन प्रिजनर्स आर कॉट दे मस्ट बी ट्रीटेड इन अ ह्यूमन वे। उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर बीइंग नाउ प्रोटेक्टेड अंडर जिनेवा कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1949। इसके बाद भी कई कन्वेंशन आए। तो इंटरनेशनल लॉ ने डायरेक्टली उनके ऊपर उनको राइट्स दिए। बट ओपनहाइम सेज दैट इन द एंड ये states are the real subjects. Why? Because they become instrument of international law to deal with pirates and slave, hence making the later objects of international law. It means that according to Oppenheim, pirates हो गए, prisoners of war हो गए, slaves हो गए, या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो तो फिर भी स्टेट ही होंगी। किसी ना किसी स्टेट, कोई ना कोई स्टेट ही जो है वो उसका ऑफिशियली जो है वो पायरेट को पकड़ेगा। किसी ना किसी स्टेट ने ही किसी प्रिजनर को अपने पास इन प्रिजन में रखा होगा और उसी को ही कहा जा रहा है ना कि आप उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर जो है वो उनसे इनह्यूमन ना करें, सलूक ना रखें आप। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओपनहाइम ने और जो ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट हैं वो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स नहीं हैं। एंड सोवियत इंटरनेशनल लॉयर्स आल्सो एग्री विद दिस व्यू। So the other one is the individuals as subjects of international law. Only individuals. Kelsen is the main proponent here. Kelsen says कि देखिए कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, अगेन बार बार कैल्सन का जिक्र आता है, उसकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में उसने एक चीज़ साबित की थी दैट स्टेट इज़ लॉ। यानी स्टेट एक मेटाफिजिकल एक एंटिटी है जो कि कंपोज होती है इंडिविजुअल्स पे। ये ऐसी है जैसे अगर हम ये कहें कि फलां पाकिस्तानी ने जो है वो एक गलत काम किया है जो कि अंडर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ रॉन्ग। अब ये कहना कि पाकिस्तान से है मींस वो एक इंडिविजुअल है, इन द एंड वो एक इंडिविजुअल है, तो पनिशमेंट उस बंदे को होगी, ठीक है। और अगर वो पनिशमेंट या आप किसी स्टेट पे सैंक्शंस भी लगाते हैं तो स्टेट के जो अंदर इंडिविजुअल्स हैं वो सैंक्शंस उन इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट करती है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि इन द एंड इंटरनेशनल लॉ का जो ओनली सब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल है। और फिर इसमें आगे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, जिस तरह के 1965 ऑफ कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वी हैव ऑलरेडी talked a little bit about this. This is the convention through which if there is an international person and he is investing in your state, and in case of any dispute, according to this convention he can move. Now this international person who is a company, जिस कंपनी ने आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट की और कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो जाके इंटरनेशनल जो इसी कन्वेंशन के तहत जो ट्रिब्यूनल है उधर जाके आपके खिलाफ क्लेम करे। एंड दिस हैज़ हैपेंड इन Recordec केस अगेंस्ट पाकिस्तान. दिस एक्चुअली हैपेंड व्हेन they were awarded by Balochistan government, and Supreme Court of Pakistan nullified that contract. The company Recordec went to international tribunal under this convention and they got remedy of multi-million dollars. तो ये बात आप समझें कि इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि एक कंपनी जो है वो भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो अपना क्लेम लेके जा सकती है एक ट्रिब्यूनल पे। फिर डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल्स केस, ये 1928 का पोलैंड ने इस केस में ये कंपनी ली थी और इस कंपनी के साथ और इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत उसने कंपनी ली और बाद में उसने ये कहा कि मैं इस कंपनी के ऑफिशियल्स को, हायर ऑफिशियल्स को पर्क्स, जो भी पर्क्स का वादा उसके किया गया देंगे। बाद में उसने नहीं दिया पोलैंड ने, ये कहा जी कि ऑब्जेक्ट्स हैं, आई एम नॉट बाउंड टू ऑनर माई प्रॉमिस। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा, वो जब ये क्लेम गया आगे तो ICJ ने ये बात की कि नहीं, रॉन्ग,
आपने कमिटमेंट किए तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर न्यूरमबर्ग ट्रायल है, टोक्यो ट्रायल है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, जिसके तहत जो यूरोपियन कोर्ट बनी, जहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स के केसेस जाते रहे। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी 1957 में, उसके प्राइवेट इंटरप्राइजेज को भी उन्होंने राइट्स दिए कि भाई आप अपने क्लेम्स को लेके जा सकते हैं। There are some other instances that I have given. These are all examples. International organizations as UN is directly subject heads of states, diplomats के ऊपर राइट्स, उनके कुछ राइट्स हैं जो डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ ने उनको दिए हैं। तो इसका मतलब कि फिर वो भी सब्जेक्ट्स हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाते तो आप उनको उनको एक सरकारी उनका प्रोटोकॉल होता है, आप उस प्रोटोकॉल से नीचे उनको ट्रीट नहीं कर सकते। दिस इज द राइट दैट हैज बीन गिवन टू हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल। इंसर्जेंट्स इंसर्जेंट्स आर नॉट स्टेट्स। इंसर्जेंसी का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। इंसर्जेंट्स आर बेसिकली नॉन स्टेट एंटिटी एंड समटाइम्स दे आर गिवन राइट्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड समटाइम्स बाय इंटरनेशनल लॉ ड्यू टू ऑफ कोर्स उसमें उनके अपने मुख्तलिफ स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। बट येस, इंसर्जेंट्स आर नॉट अ स्टेट एंड दे आर दी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब डिवीजन ऑफ स्टेट्स, ये में पॉइंट है। प्रोटेक्टोरेट्स, condominiums, these are the terminologies according to the state sovereignty which we will cover under the topic of state sovereignty. But here you have to understand one thing: states and the kinds of states, all are the subjects of international law. Kinds of state means कई दफ़ा एक स्टेट के ऊपर दो मुख्तलिफ पावर्स का कब्जा होता है, लेकिन वो स्टेट तो मौजूद होती है, तो वो इंटरनेशनल लॉ का डायरेक्ट सब्जेक्ट है। फिर प्रिजनर्स की बात आ गई, स्लेव्स की बात आ गई, पायरेट्स की बात आ गई कि इनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई होता है। एंड देन इंटरप्राइजेज ऑल्सो। इंटरप्राइजेज जिस तरह के अभी मेरे पीछे आपको एग्जांपल दी कि जब यूरोपियन कॉमन जो एक्टिविटी जब बनी थी तो उस वक्त उन्होंने इंटरप्राइजेज को दिए थे। और अभी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो अभी हमने कन्वेंशन पढ़ा है उसमें भी हमने ये देखा है कि इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो अपने क्लेम्स लेके जा सकती हैं हाई वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में। तो दैट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। To conclude all of it, you have to say that, I mean, I can conclude it in this way, that it is an accepted fact that states are the main subjects of international law, but in modern times, international organizations, regimes, enterprises, and individuals have been bestowed with some rights and duties, as we have discussed before. Interests of individuals and their fundamental rights have become the main agenda of international law. Why? Because now, even if you have complete sovereignty in your state, still you cannot take away the fundamental rights from the individuals living there, from the minorities there. Otherwise, there will be an international outcry and you will be forced to face sanctions under Security Council. Then comes using of state as a medium to use international forum is not proving fruitful in recent times. And yes, it is true. अगर एक इंसान के साथ कोई मसला होता है तो वो इस चीज़ का, क्योंकि आईसीजे में अभी भी सिर्फ स्टेट्स ही क्लेम्स लेके जाती हैं, तो time has come to amend this provision, and this has been asserted by different jurists like J.J. Starr. And the last one is the majority of international law still deals with rights and liabilities of states, which is very much true, and but it is decreasing day by day. So you can say that not only states, I mean, states are still the greater part of international law as a subject, but individuals, enterprises, international organizations are now being treated as subjects of international law too. And this is all for today's question. And I hope that this discussion was fruitful for you. And I will be very happy to hear some queries from all of you, whoever is watching this video. Thank you.